Hello and welcome. Welcome to the fifth learning session of chapter number 8 of science and which is metallurgy. But before we begin today's fifth learning session, there was some problem with the previous learning session, which was the fourth learning session. Okay. So the ending part of my video, the previous video was not recorded. And hence we're going to continue with the ending part of the last learning session. There were two end of chapter questions that we wanted to discuss. So we'll discuss those two first and then we will continue with today's learning session. Okay. So what were the questions that we were discussing? The first question was a give reason. Sodium is always kept in kerosene. So we were looking at the answer and I had explained the first point and I was explaining the second point when the recording stopped. So I'm going to explain the entire answer again anyway. So the first point is sodium reacts with moisture present in air even at room temperature. Okay. Moisture means हमारे जो air में water content होता है, water vapor होता है थोड़ा सा, उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है अगर तुम एयर में लेके आओगे इवन एट रूम टेम्परेचर. ओके, उसको कुछ हीट वगैरह नहीं करना पड़ता, अपने आप से रिएक्ट करना शुरू कर देगा. रिएक्ट करके क्या होने वाला है? इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. दिस वी हैव सीन इन द टॉपिक metals reacting with water, right? उसमें हमने देखा था कि whenever metals react with water we get hydroxide and hydrogen gases released. So sodium combines with water and it gives you sodium hydroxide and hydrogen gas. Okay, this reaction is exothermic. Exothermic का मतलब क्या है? Exothermic, this word is made up of two small words. Okay, first is exo means बाहर, thermic means heat. Okay, so heat बाहर फेंकेगा. वो कौन फेंकेगा? ये reaction. When sodium is combining with water to give sodium hydroxide and hydrogen gas, it is going to be exothermic. बहुत सारा heat release होने वाला है. And therefore the released hydrogen gas readily catches fire on exposure to air. Okay, you know that hydrogen gas is going to be released and you also know that hydrogen gas is easily inflammable. Okay, हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा कि हाइड्रोजन गैस के पास में हम जब भी कैंडल लेके आ जाते हैं, it burns with a pop sound. It has a special cracking sound, right? So हाइड्रोजन गैस काफी इजीली जल जाता है. इसीलिए वो जो रिएक्शन की वजह से हीट बाहर फेंकी जा रही है, रिलीज हो रही है, उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रहा है रिएक्शन में वो जल सकता है. इट कैन कैच फायर. ओके, एंड हेंस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन. ओके, अगर केरोसिन में अगर सोडियम को रखेंगे तो एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा. एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा यानी एयर में जो वाटर वेपर है, मॉइस्चर है, उसके साथ भी कांटेक्ट में नहीं आएगा और उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा. दैट इज द लॉजिक. ओके, तो सोडियम एयर में वाटर के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए और जो हाइड्रोजन गैस है उसको फायर नहीं हो लगना चाहिए, इसलिए हम उसको केरोसिन में रखते हैं. ओके, सो दैट्स योर आंसर टू द first give reason, which is sodium is always kept in kerosene. The second give reason that I wanted to discuss yesterday was this. Generally, the ionic compounds have high melting points. Why is that? We had looked at ionic compounds in detail in our previous learning session, right? So here is the answer. First point, ionic compounds are composed of cations and anions. Okay, what is cations? Cat any positive. So positive ions are cations. Anions, onions any negative. So anions means negative ions. So ionic compounds have positive ions cations and negative ions anions. These ions are held together by strong electrostatic forces of attraction. क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, राइट? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो अगर तुम्हें किसी भी चीज को मेल्ट करना है तो मेल्ट करने के लिए उनके बीच में जो बॉन्ड्स है उसको तोड़ना पड़ेगा. तो अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को तोड़ना है, बॉन्ड्स को तोड़ना है, तो तुम्हें काफी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या है? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. ओके, दैट्स इट. So that's your answer to the second give reason that I wanted to discuss in the previous learning session. Now we can continue with our today's learning session, fifth learning session. Okay, so these are the topics that we have covered so far. We saw physical properties of metals and non-metals. We saw chemical properties of metals and non-metals through reactions of metals and non-metals. And in last learning session, we looked at ionic compounds and its properties. We saw 5 general properties of ionic compounds, right? So these are the basic principles of metallurgy. Okay? There are 3 basic principles. First is concentration of ores. Second is extraction of metals. The third one is refining of metals. In concentration of ores also you have many different methods. You have gravitation method, जिसके अंदर भी अलग 2 मेथड होते हैं. You have magnetic separation method, froth flotation method and leaching. So in today's learning session, we only want to look at concentration of ores, which is the first basic principle of metallurgy.
The remaining two we'll see in the upcoming learning sessions. Okay. So your learning objective for today is going to be students will be able to explain methods to obtain concentration of ores using diagrams. Okay. How can you concentrate ores? That you should be able to explain using diagrams. There are going to be many diagrams in today's learning session. Okay. And I have a very strong feeling that at least one diagram based questions will be asked from today's topic itself. So make sure you're paying careful attention to all the diagrams given in your textbook with respect to all the things that we will discuss today. Okay. So because this is a chemistry chapter, I'm going to again remind you all to please by heart this particular table. Okay. Only when you by heart this table, any chemistry chapter will seem easy to you, or else chemistry nahi samajh mein aayega bina is table ke. Okay. So what is metallurgy? The science and technology regarding the extraction of metals. What is the meaning of extraction? Extraction यानी निकालना. किसमें से निकाल रहे हैं? From ores. What is ores? We'll look at in detail in our upcoming slides. Okay, but ores में से metals को निकालना, extract करना, and their purification. बस metal को निकालना नहीं है, बस metal को purely बनाना है for use, ताकि उससे कुछ ना कुछ use कर सके. Is called as metallurgy. Okay. Occurrence of metals. Okay. Most metals being reactive do not occur in nature in free state. Okay. अगर समझो तुम्हें कॉपर चाहिए तो ऐसा नहीं होगा कि तुम किसी रेगिस्तान में चल रहे हो नीचे कॉपर दिख गया. ऐसी कॉपर नेचर में प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं. राइट. मोस्ट मेटल्स आर रिएक्टिव. वो हमेशा किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करेंगे और फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे. सिर्फ कॉपर मिल गया, सिर्फ आयरन मिल गया, सिर्फ टिन मिल गया, ऐसा नहीं मिलेगा कहीं पे भी नेचर में. बट आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सॉल्ट्स such as oxides, carbonates, sulfide, nitrate, etc. For example, aluminium. तो सिर्फ एल्यूमिनियम कभी मिलेगा नहीं खोदने के बाद. तुम्हें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल सकता है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट मिल सकता है, एल्यूमिनियम सल्फाइड मिल सकता है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट मिल सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो उस मेटल के अलग अलग सॉल्ट्स होंगे, उसके फॉर्म में मेटल्स मिलते हैं, बट ऐसा फ्री स्टेट में नेचर में नहीं मिलेगा. However, the most unreactive metals that are not affected by air, water, and other natural factors like silver, gold, platinum generally occur in free state. तो ये जो first point है वो reactive metals के लिए जो easily react करते हैं. But we have also seen in the reactivity series of metals, right? There are some metals that do not react very easily. उसके examples क्या है? Gold, silver, platinum. इनको अगर एयर, इनके आजू बाजू एयर होगा, इनको अगर तुम पानी में डाल दो, एसिड में डाल दो, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये लोग रिएक्ट नहीं करते. हेंस दे आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स. हम लोग सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम के ऑर्नामेंट्स क्यों बनाते हैं? हम लोग कॉपर के ऑर्नामेंट्स क्यों नहीं बनाते? हम लोग आयरन के ऑर्नामेंट्स क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो इजीली रिएक्ट कर देगा. इजीली रिएक्ट करने के बाद बहुत जल्दी वो खराब हो जाएगा. दैट्स नॉट व्हाट वी वांट, राइट? अगर हमें अंगूठी बनानी है तो सालों साल कितना भी उस पर साबुन लगा दो, पानी लगा दो, केमिकल लगने दो, वो खराब नहीं होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए. सो वो कब होगा? जब वो अनरिएक्टिव मेटल होगा. व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ अनरिएक्टिव मेटल? सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. तो ये फ्री स्टेट में मिलते हैं. ओके. देयर आर मेनी प्लेसेस इन यूएस, अमेरिका, जहां पे ऐसा रिवर्स के एकदम एज पे छोटे छोटे गोल्ड के टुकड़े मिल जाते हैं. सो अराउंड 150 years बैक, लाइक there's a term called as gold rush. gold rush यानी जैसे कहीं पे अमेरिका किसी पार्ट में गोल्ड मिल जाता किसी एक इंसान को, बहुत सारे लोग एक साथ वहां पे आ जाते थे और वहां पे गोल्ड को ढूंढना शुरू कर देते. तो गोल्ड मिलता है ऐसे ओपन में, बट ऑब्वियसली इतना बड़ा टुकड़ा नहीं मिलेगा गोल्ड का. एकदम छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो तुम्हें उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, छानना पड़ता है, और तुम्हें गोल्ड मिल सकता है. ओके. The compounds of metals that occur in nature along with impurities are called as minerals. Okay. So metal अकेला मिलने नहीं वाला है. metal किसी कंपाउंड फॉर्म में होगा, राइट? सो जो कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा नेचर में, उसको हम मिनरल बोलते हैं. तो उसमें मेटल का कंपाउंड भी होगा, इम्प्यूरिटी भी होगी. ओके. सो से फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ थोड़ा सॉल्ट भी होगा, कोई दूसरा हो सकता है, या फिर उसके साथ कोई मिट्टी हो सकती है, लावा हो सकता है, कोई दूसरा मेटल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो कंपाउंड ऑफ मेटल प्लस दूसरा इम्प्यूरिटी जो होगा, उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? मिनरल्स. तो हम लोग जब ज्योग्राफी में बोलते हैं this country has lot of minerals, it has many resources, इसका मतलब क्या है? इसके पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें मेटल्स है, जिसको हम निकाल सकते हैं. ओके. और यूज कर सकते हैं. The minerals from which the metal can be separated economically are called as ores. Okay. मिनरल्स बहुत सारे हैं, बट उन सब में से मिनरल्स में से किसमें से मेटल निकाल के हम प्रॉफिट बना सकते हैं, उसको हम ओर्स बोलते हैं. ओके. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग ने समझो 1 करोड़ लगा दिए, इतने से
मिट्टी में से इतनू सा गोल्ड निकालने के लिए। अभी इतनू सा गोल्ड 1 करोड़ के लिए तो बेच नहीं पाओगे तुम लोग, तो इकोनॉमिकल नहीं है, राइट? तुमने जितना पैसा डाला उससे ज्यादा पैसा तुम्हें बेच के मिलना चाहिए मेटल, तब वो इकोनॉमिकल होता है। तो ऐसे जो मिनरल्स होते हैं उनका हम ओर्स बोलते हैं, जिसमें से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। Ores contain many types of impurities like soil, sand, rocky substances, along with metal compound. तो metal compound अकेला नहीं होगा, उसमें मिट्टी होगा, उसमें sand होगा, उसमें rocky substance होंगे, पत्थर होंगे. These impurities are called gang. Okay? इसको actually, if you pronounce this word, you should say gangway, right? Gangway. But that's not how you pronounce it. You only say gang. Okay, GAN. GUE यहाँ पे silent है. So gang. सो ये जो इम्प्यूरिटीज होते हैं, मेटल कंपाउंड्स प्लस इम्प्यूरिटी होता है बराबर ओर में। ओर इज मेड अप ऑफ मेटल कंपाउंड्स प्लस इम्प्यूरिटी। तो जो इम्प्यूरिटी होता है उसको हम गैंग बोलते हैं। ओके, मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय द मींस ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ओके, बहुत सारे अलग अलग मेथड सेपरेशन के। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर स्टेट फ्रॉम द ओर्स इज आल्सो पार्ट ऑफ मेटलर्जी। कि मेटल, ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का प्रोसेस है इन प्योर स्टेट फ्रॉम ओर्स। ओर्स में क्या क्या है? ओर्स में है मेटल कंपाउंड प्लस इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी तुम निकाल दोगे, गैंग निकाल दोगे तुम, तो तुम्हारे पास मेटल कंपाउंड बन गया। अभी मेटल कंपाउंड में से मेटल निकालना और उसको फिर उन्हें प्योर करना, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये भी मेटलर्जी का पार्ट है। ओके, ores are taken out from mines and gang is usually separated from the ore at the site itself by various methods. तो बहुत बार क्या करते हैं वो लोग, समझो ये जो ओर्स है, ओर्स कहां से निकालोगे? माइंस में से निकालोगे, राइट? सो माइंस में जाओगे, माइंस में से तुम ओर निकाल लोगे और उस साइट के ऊपर माइन के आजू बाजू कहीं पे एक छोटा सा मशीन होगा जिसमें से तुम गैंग को बाहर निकाल सकते हो। और इस गैंग, पत्थर होंगे, मिट्टी होगा वगैरह वगैरह, इसको तुम साइट पे ही निकाल सकते हो। Then the ores are carried out to a place where metals are produced. तो फिर बाद में एक बार गैंग निकाल दिया तो उस ओर को किसी फैक्ट्री में लेके जाएंगे जहां पे मेटल बना सकते हैं। These metals are extracted in pure form. Then metals are further purified by different methods of purification, and this entire process is called as metallurgy. पहले ओर निकालो, ओर में से गैंग हटा दो, गैंग में से प्योर फॉर्म में मेटल को निकालो, मेटल को निकालने के बाद उसको प्यूरिफाई करो, पूरे के पूरे प्रोसेस को हम मेटलर्जी बोलते हैं। ओके, so we saw that basic principles of metallurgy are three: concentration of ores, extraction of metals, and refining of metals. Right? We're going to look at concentration of ores. Concentration of ore का मतलब क्या है? देखो, एल्यूमिनियम का जो ओर है उसको हम बॉक्साइट बोलते हैं। अभी जब तुम एल्यूमिनियम का ओर निकाल रहे हो तो से फॉर एग्जांपल उसमें 50% एल्यूमिनियम है, 50% ऑक्सीजन है। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में तुम्हें मिला 50% एल्यूमिनियम, 50% ऑक्सीजन। अभी इसमें से एल्यूमिनियम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें कैसा चाहिए? तुम्हें चाहिए 80% एल्यूमिनियम होना चाहिए, 20% ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ही तुम उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो तुम्हें क्या करना है? वो जो 50-50 वाला रेशियो है उसको तुम्हें 80-20 करना है। पहले 50% एल्यूमिनियम था, अभी तुम्हें 80% एल्यूमिनियम करना है। तुम्हें क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना है, 50% से 80% लेके जाना है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओट्स। ओट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज करना है। ओके, और उसके इतने अलग अलग मेथड है। The process of separating gang from ores is concentration of ores. तो जैसे तुम गैंग यानी क्या? इम्प्यूरिटी। जैसे इम्प्यूरिटी बाहर निकालोगे तुम्हारे ओर्स में से, तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, इसमें मेटल ज्यादा होगा, कचरा कम होगा। In this process, the concentration of the compound of the desired metal is increased. Various ways are used for this purpose. However, exact way to be used depends upon the physical properties of the metals present in the ores and the gang. मैं भी उसको गलती से आजकल गैंगवे बोलता हूँ। इट्स गैंग। ओके, इनफैक्ट मैं स्कूल में गैंगवे ही बोलता था बिकॉज गैंगवे से स्पेलिंग अच्छे से याद रहता है। व्हेन यू से गैंग अगेन एंड अगेन, स्पेलिंग भूल जाते हैं बच्चे जनरली। ओके, बट से गैंग। ओके, योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट। सो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस है, राइट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स बढ़ाने के लिए भी कौन सा प्रोसेस यूज करोगे किस पे डिपेंड करेगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर्स। तुम कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा separation method use करोगे। Okay, there are so many separation methods, right? There's gravitation method, magnetic method, froth flotation method, leaching, so on and so forth. तो कौन सा मेथड यूज करना है वो तुम्हारे फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेटल्स पे डिपेंड करेंगे। ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल एंड द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर प्यूरिफिकेशन। वो मेटल कितना इजिली रिएक्शन
अंडरटेक करता है, उस पर भी डिपेंड करता है कौन से फैसिलिटीज अवेलेबल है, कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस मेटल को प्योर बनाने के लिए, उस पर भी डिपेंड करती है कौन सा सेपरेशन मेथड तुम यूज करने वाले हो. Various factors that could be responsible for the environmental pollution are also considered. Okay, कौन से separation method से कम environmental pollution होगा ये भी सोचना चाहिए लोगों को, but honestly practically कोई सोचता है नहीं. Recently I remember there is a case going on जहाँ पे अडानी you all know right, in fact अभी आजकल मुंबई में जो इलेक्ट्रिसिटी वो भी अडानी प्रोवाइड करता है. So Adani is a huge company. He's a very wealthy man and he wants to open a mine in Australia. और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को नहीं चाहिए वो, क्योंकि वहां पे बहुत पोल्यूशन होने वाला है. बट अडानी डज नॉट रियली केयर, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडियन बिजनेसमैन के अगेंस्ट. इनफैक्ट अभी जो हमारा टूर हुआ था टेस्ट मैच का, क्रिकेट टेस्ट मैच का, उसमें भी देयर वाज दिस वन पर्सन हु वाज प्रोटेस्टिंग बाय टेकिंग अ प्लेकार्ड एंड कमिंग inside the cricket ground, और वो basically protest कर रहे हैं. So there's a lot of protest going on in Australia regarding, or rather against Adani's mines. Okay, so in principle करना चाहिए, एनवायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए, बट जब पैसे इन्वॉल्व होते हैं जनरली लोग ध्यान नहीं रखते. इसलिए यू नीड वेरी गुड रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड यू आल्सो नीड गुड एजुकेशन फॉर सच पीपल who do not who don't then become businessmen who do not think about the nature. Okay, so that was a quick segue about current affairs in our world. Okay, it's weird right कि इंडिया को तो खराब कर दिया हमारे बिजनेसमैन ने, बहुत सारे लोगों ने, नॉट ऑल बट मेनी. बट अभी आप लोग जाके दूसरे कंट्रीज को भी खराब करना शुरू कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज को. ओके, so first we are going to look at separation based on gravitation. The heavy particles of ores can be easily separated from the light particles of gangue by the gravitational method. The processes to carry out this separation are as follows. दो processes है, एक है विल्फी टेबल मेथड, दूसरा है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड. ओके, ग्रेविटेशन से सेपरेट करना होगा तो तुम्हारे पास दो मेथड है, विल्फी टेबल मेथड and hydraulic separation method. We'll first look at Wilfy table method. So here is the diagram for Wilfy table method. The first thing to notice over here is they are writing powdered ore. So जो कुछ भी ore तुम माइन से कलेक्ट करोगे उसका पहले पाउडर बनाना पड़ता है, and that is generally done using ball miller. So ball miller क्या होता है? It's like a container in which you put the pieces of ore, और उसमें छोटे छोटे मेटल के बॉल्स होते हैं, and then you keep rotating it. तो जैसे तुम उसको रोटेट करोगे अंदर के छोटे छोटे जो मेटल के बॉल्स है वो भी तुम्हारे ओर के पीस को क्रश करते रहेंगे, क्रश करके उसका जब तक पाउडर नहीं बनता तब तक उसको तुम रोटेट करते रहोगे. सो वंस यू पुट पीसेस ऑफ बिग पीसेस ऑफ ओर दैट यू कलेक्ट फ्रॉम द माइन इन द बॉल मिलर, बहुत टाइम के लिए रोटेट करने के बाद यू गेट पाउडर. ओके, सो दैट पाउडर यू गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर मेथड. नेक्स्ट थिंग व्हाट यू नोटिस इज देयर इज अ पाइप ऑफ वाटर. सो क्या करेंगे, ये जो पाउडर है जो तुमने बॉल मिलर से बना है ओर का, और ये जो पानी, ये एक साथ इस टेबल पे आने वाले हैं. नाउ दिस टेबल इज स्लांट. ओके, ऐसा या पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, पूरी तरीके से वर्टिकल भी नहीं है, ऐसा स्लांटिंग है ये टेबल. सो द टेबल हैज अ स्लाइट स्लांट. अनदर थिंग टू नोटिस इज इट हैज स्लिट्स. अभी स्लिट्स का मतलब क्या है? स्लिट्स मतलब छोटे छोटे शेल्फ्स. ओके, बुक शेल्फ जैसे होते हैं, फर्स्ट शेल्फ, सेकंड शेल्फ, थर्ड शेल्फ, वैसे यहाँ पे एकदम छोटे छोटे शेल्फ्स होंगे. ओके, उसको यहाँ पे स्लिट्स बोला है. एंड यहाँ पे जो पानी प्लस पाउडर का मिक्सचर है ये इस टेबल पे आने वाला है. ओके, और यहाँ इसके ऊपर से फ्लो करने वाला है. बिकॉज ओके, वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नोटिस इज यहाँ पे वाइब्रेटिंग टेबल लिखा है. सो यहाँ पे ये जो टेबल है ये लेफ्ट राइट वाइब्रेट होते रहेगा. जैसे यहाँ से मिक्सचर गिर रहा है पानी और पाउडर का इस टेबल पे, ये टेबल कंटिन्यूसली वाइब्रेट होने वाला है. सो इट विल कीप वाइब्रेटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, so now when this mixture of powder and water is coming down on this table and this table is vibrating, जो हल्के हल्के पार्टिकल्स होंगे वो पानी के साथ फ्लो होके नीचे आ जाएंगे. पानी क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि स्लांटिंग है, राइट. जब भी कोई भी चीज स्लांटिंग होती है पानी इज गोइंग टू फ्लो राइट अबव इट. सो जो हल्के पार्टिकल्स है इस पाउडर्ड ओर में विच आर लाइट इन वेट, वो पानी के साथ पास होके यहाँ पे नीचे कलेक्ट हो जाएंगे, राइट. इसलिए यहाँ पे लिखा है गैंग. गैंग क्या है? इम्प्योरिटी, राइट. So, जो कुछ भी इम्प्योरिटी होगा जो हल्का होगा वो यहाँ पे नीचे फ्लो होके गैंग यहाँ पे नीचे कलेक्ट हो जाएगा. Whereas ओर में जो मेटल होता है, मेटल जनरली हैवी होता है. सो हैवी पार्ट जो होगा वो स्लिट में अटक जाएगा. तो यहाँ पे थोड़ा अटक जाएगा, यहाँ पे थोड़ा अटक जाएगा, यहाँ पे थोड़ा अटक जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ.
सो एक बार पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो कुछ भी अटका हुआ पार्ट है उसको तुम बाहर निकाल के कॉन्सेंट्रेटेड ओर को सेपरेट कर सकते हो. ओके, सो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर सेपरेट हो गया, तुम्हारा गैंग भी सेपरेट हो गया. सो दैट्स योर विल्फी टेबल मेथड. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू एक्चुअली सी अ विल्फी टेबल. ओके, सो यू कैन सी दैट कि वहां पे कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से पाउडर आ रहा है, वो मिक्सचर कैसे नीचे आ रहा है, स्लिट कैसे दिखते हैं, वाइब्रेट कितना फास्ट होता है, वो कहाँ पे कौन से कंटेनर में पूरा गैंग collect हो रहा है. All that you can observe in the next slide. Okay, so here it is. Right, so let us look at it one more time. देखो ये जो टैंक है, टैंक में पानी भी है उस पाइप में से, और उसके ऊपर पाउडर भी है. ओके, पाउडर और भी है. तो स्लिट के ऊपर जब वो पास होता है, हल्के हल्के पार्टिकल नीचे आ रहे हैं. ओके, पानी के साथ, और ये इस कंटेनर में कलेक्ट हो रहा है. सो पूरा गैंग जो है इस कंटेनर में कलेक्ट हो रहा है. और ये जो स्लिट्स है, स्लिट्स में तुम्हारे हेवियर पार्टिकल्स अटक जाएंगे, एंड एट द एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. देखो स्लिट में जो हैवी पार्ट था वो अटक जाएगा. तो हैवी पार्ट को तुम सेपरेट कर लो, और तुमने अपना ओर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया. तो दैट इज योर विल्फी टेबल मेथड. नेक्स्ट मेथड इज हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड. इट्स अ वेरी सिंपल मेथड. ओके, ये डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है. इट्स अ वेरी सिंपल मेथड. व्हाट यू डू इज यू टेक अ टैंक, एंड उस टैंक का जो एंड है वो टेपर कर लो. टेपर यानी नीचे सा पेंसिल के शेप में होना चाहिए. नीचे का जो डायमीटर है, रेडियस है, वो कम होते जाना चाहिए. ओके, तो ऐसा कंटेनर ले लो. उस कंटेनर में तुम क्या डालोगे? पानी डालोगे. इसमें बहुत सारा पानी होना चाहिए, और उस पानी में तुम लोग पाउडर्ड ओर डालोगे. ओके, हियर आल्सो यू नीड ओर इन पाउडर फॉर्म. सो बॉल मिलर में पाउडर बना दो, और उस पाउडर को इस कंटेनर में डाल दो. नाउ व्हाट यू गोइंग टू डू इज नीचे से एक वाटर जेट डाल दोगे. ओके, यू शूट अ वाटर जेट फ्रॉम बिलो. जब तुम वाटर जेट नीचे से ऊपर डालोगे, तो कौन सा पार्ट ऊपर जाएगा, कौन सा पार्ट नीचे आएगा? जो कोई भी हल्का पार्ट होगा, लेस इन वेट, दैट इज गोइंग टू मूव अप, एंड जिसका भी वजन ज्यादा होगा जिस पार्टिकल का, वो नीचे आ जाएगा. सो दैट्स व्हाट गोइंग टू हैपन. ओके, बिकॉज ऑफ दिस वाटर जेट, इस पाउडर्ड ओर में जो कुछ भी हल्का पार्ट था वो ऊपर रह जाएगा, और जो कुछ भी ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक राइट साइड में एकदम स्लिट निकाल के, एक पाइप निकाल के उसको कलेक्ट कर सकते हो, विच इज योर इम्प्यूरिटीज और गैंग. ओके, सो जो हल्के पार्टिकल्स है, जो इम्प्यूरिटी है, जो गैंग है, वो यहाँ पे राइट साइड में निकल जाएगा, बिकॉज वाटर के प्रेशर की वजह से ऊपर चला जाता है. वेर एज जो मेटल वाला पार्ट होगा, ओके, जो हैवी होने वाला है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा इस वाटर जेट से, क्योंकि वो हैवी है. राइट, सो हैवी है तो वो नीचे आ जाएगा अपने आप, वो ऊपर नहीं जाएगा. सो जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, जो हैवी पार्ट है, वो यहाँ से नीचे आके तुम नीचे से कलेक्ट कर लो, जो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर है. ओके, सो बोथ ऑफ देम आर यूजिंग ग्रेविटी. पिछले वाले मेथड में भी, विल्फी टेबल मेथड में भी हम लोग ग्रेविटी यूज कर रहे थे हल्के पार्टिकल्स को निकालने के लिए. यहाँ पे हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड में भी हम लोग ग्रेविटी यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हल्का होगा वो पानी के साथ ऊपर जाएगा, ऊपर से हम लोग कलेक्ट करेंगे अलग से गैंग, और जो हैवी होगा वो नीचे आ जाएगा, और वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर बन जाएगा. सो दैट वाज योर hydraulic separation method. Both of them used gravity. Okay, let's move on now to magnetic separation method. Okay, so magnetic separation method किसके लिए यूज कर सकते हैं? या तो तुम्हारा जो मेटल है वो मैग्नेटिक होना चाहिए, या फिर जो इम्प्यूरिटी है वो मैग्नेटिक होना चाहिए. either of the two. या तो जो तुम्हें मेटल निकालना है वो मैग्नेटिक होना चाहिए, या फिर जो इम्प्यूरिटी है तुम्हारे ओर में वो मैग्नेटिक होना चाहिए, तो तुम ये अच्छे से यूज कर सकते हो. ओके, सो व्हाट यू नोटिस हियर इज देयर आर टू रोलर्स. ओके, यहाँ पे फर्स्ट रोलर एंड यहाँ पे सेकेंड रोलर. सो फर्स्ट रोलर नॉन मैग्नेटिक है. ओके, ये नॉर्मल मेटल से बना है, मैग्नेट नहीं है ये. द सेकेंड रोलर, इट इज द मैग्नेटिक रोलर. क्यों मैग्नेटिक है? ओके, बिफोर दैट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा. ओके, नॉट मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? इन द चैप्टर effects of electric current we have learned, right? Whenever you pass electricity from an object, it becomes magnetic. जैसे इलेक्ट्रिक करंट होगा वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है. तुम एक स्विच चालू कर दोगे तो ये रोलर मैग्नेटिक बन जाएगा, स्विच बंद कर दोगे तो ये रोलर मैग्नेटिक नहीं रहेगा, नॉर्मल बन जाएगा. ओके, सो ये दो रोलर्स घूमने वाले. ओके, समझिए ये ऐसे रोटेट होने लग गया और ये ऐसे रोटेट होने लग गया, दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहे. नाउ आफ्टर दे स्टार्ट रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, उसके ऊपर एक बेल्ट है. ओके, वो बेल्ट भी उसके साथ साथ रोटेट होना शुरू हो जाएगा. दैट बेल्ट इज जनरली मेड अप ऑफ लेदर और ब्रास. ओके, so you have two rollers, both these rollers are going to rotate in the same direction and with the same speed. उसके ऊपर एक बेल्ट रखा है जो
रोटेशन की वजह से, रोलर के रोटेशन की वजह से वो बेल्ट अभी मूव होने वाला है. ओके, नाउ व्हाट यू डू इज, तुम नॉन मैग्नेटिक रोलर के पास में अपना ओट का पाउडर ला दो. यहाँ पे भी तुम्हें ओट का पहले पाउडर बनाना पड़ता है. तभी जब ओट का पाउडर तुम बनाओगे तो उसमें दो टाइप की चीज है. ओके, उसमें एक है नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट एंड दूसरा है मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट. तो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट को वो लोग ने ऑरेंज कलर में बताया, वरस मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट को वो लोग ने ग्रे कलर में बताया. सो इट हैज बोथ द पार्टिकल्स, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक. तो जैसे ये जो पार्टिकल्स है ये बेल्ट पे मूव करना शुरू हो जाएंगे, विल स्विच ऑन द बटन फॉर दिस मैग्नेटिक रोलर. तो स्विच ऑन करने के बाद वो वो जो रोलर है वो मैग्नेटिक हो जाएगा. ओके, उससे क्या होने वाला है, देखो जो नॉर्मल पार्टिकल्स है उसको फर्क नहीं पड़ता, जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है उनको फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नेटिक है या नहीं है. वो क्या होने वाला है, यहाँ से पास होके, क्योंकि अभी यहाँ पे एंड हो गया राइट, तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म था वो एंड हो गया, तो नॉर्मली नीचे गिरेगा. तो जो ऑरेंज वाला पार्टिकल्स है जो नॉन मैग्नेटिक है वो नॉर्मली नीचे गिर रहा है, बराबर, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. बट उसके अंदर जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो लोग चिपके रहेंगे. देखो ये यहाँ तक एंड तक चिपका हुआ है. नॉर्मल पार्टिकल ऐसे चिपकते नहीं है, वो सीधा नीचे गिर जाते हैं. अगर जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे वैसे चिपकते हुए नीचे आएंगे और एंड में एकदम पीछे जाके छूट जाएंगे. ओके, बेल्ट से छूट जाएंगे. ओके, सो इस तरीके से तुम क्या कर रहे हो, तुम मैग्नेटिक पार्ट जो यहाँ पे राइट साइड में है और नॉन मैग्नेटिक पार्ट उसको सेपरेट कर रहे हो. ओके, सो बहुत इजीली सेपरेट हो जाता है तुम्हारा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक पार्ट फ्रॉम योर पाउडर्ड ओर. क्लियर है? So again, we're going to look at an actual magnetic separation machine. Okay, let us look at how how this machine actually looks like in person. Okay, so यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे दो रोलर नहीं दिख रहा है राइट, हमें सिर्फ एक ही रोलर दिखता है. सो एक ही रोलर इंपॉर्टेंट होता है, जो मैग्नेटिक रोलर होता है वो ही इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो दिस रोलर इज मैग्नेटिक रोलर. तो यहाँ पे तुम अपना पाउडर्ड ओर डाल रहे हो और वो इस बेल्ट पे आके फिर बाद में जो नॉर्मल नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है ये ऑरेंज बॉक्स में कलेक्ट हो रहा है. ओके, नॉर्मल नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट, बट जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट होगा वो यहाँ पे चिपक के नीचे, यहाँ पे जो है ग्रीन कलर का प्लेटफॉर्म है उस रोलर के नीचे, वहां पे कलेक्ट हो रहा है. Okay, so if you see after zooming in you can see वो जो ऑरेंज वाला बकेट है उसमें नॉर्मल पार्टिकल्स, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स जमा हो रहे हैं, whereas ये ऑरेंज बकेट के राइट साइड में उसके पीछे या फिर रोलर के नीचे जो ग्रीन वाला सेक्शन है वहां पे तुम्हारा मैग्नेटिक मटेरियल जमा हो रहा है. ओके, क्योंकि वो उसको चिपक के रहता है और काफी लेट छूटता है उस रोलर में से, इसलिए वो पीछे जमा हो जाएगा. सो तुमने अभी नॉन मैग्नेटिक पार्ट एंड मैग्नेटिक पार्ट को सेपरेट कर लिया वेरी इजीली. Right, so that is your magnetic separation method. Next, no, not next. They've given examples in your textbook. Okay, remember examples. They can be asked in objective type of questions. Okay, examples are important from objective question point of view. So, for example, cassiterite is a tin ore. Tin का symbol क्या पता? Tin is an element, right? So, tin is Sn in your periodic table. Try to find Sn in your periodic table. कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है. Okay, that I want you to find by yourself. Where is tin in the periodic table? So cassiterite is a tin ore. Tin का ore है. It contains mainly non-magnetic ingredient stannic oxide, which is tin oxide. Okay, tin oxide नहीं बोलते उसको, stannic oxide बोलते हैं. And the magnetic ingredient ferrous tungstate. Okay, these are separated by electromagnetic method. So cassiterite है जिसमें से हमें टिन निकालना है, टिन का ओर है, उसमें दो पार्ट्स है, एक तो है नॉन मैग्नेटिक पार्ट टैनिक ऑक्साइड और दूसरा है मैग्नेटिक पार्ट फेरस टंगस्टाइट. तो क्या करोगे तुम लोग, उसको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से उसको सेपरेट कर दोगे. तो तुम्हारा नॉन मैग्नेटिक पार्ट ऑरेंज वाले बकेट में तुम्हें स्टैनिक ऑक्साइड मिल जाएगा और जो ग्रीन वाला पार्ट है पीछे वाला पार्ट उसमें तुम्हें फेरस टंगस्टन मिल जाएगा. तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें टिन चाहिए, बराबर. तो टिन कहाँ पे, स्टैनिक ऑक्साइड में. तो जो ऑरेंज वाला बॉक्स है उसको तुम निकाल के फिर बाद में फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए भेज सकते हो. तुमने जो फेरस टंगस्टेनेट है उस टंगस्टेट है उसको बहुत इजीली तुमने सेपरेट कर दिया यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज एग्जांपल्स फ्रॉम फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट we are looking at froth flotation method. Okay, froth flotation method. froth का मतलब क्या, flotation का मतलब तो हमें पता है, फ्लोट होना. what is froth का मतलब, so froth is nothing but किसी भी लिक्विड पे ऊपर पे जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं उसको froth बोलते हैं. ओके, तो जब तुम चाय बना रहे हो, कॉफी बना रहे हो, दूध
उबाल रहे हो, तो उसके टॉप लेयर पे जो बबल्स मिलते हैं उसको हम फ्रॉथ बोलते हैं. ओके, आई लव कोल्ड कॉफी, राइट? सो वेन एवर आई मेक कोल्ड कॉफी इन द मिक्सर, I'll put some milk, I'll put some ice cubes, I'll put some coffee sugar, so I'll put some chocolate syrup and I'll mix it, right? तो मिक्स करने के बाद उसमें एयर बबल्स घुसने की वजह से छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं टॉप लेयर पे, उसको हम फ्रॉथ बोलते हैं. तो मुझे कोल्ड कॉफी पसंद है, तो मुझे कोल्ड कॉफी में फ्रॉथ बहुत इजीली दिखता है. अगर तुम्हें दूध पसंद है, दूध में तुम्हें मिल जाएगा फ्रॉथ. ओके, so that is the meaning of the word froth. The froth flotation method is based on two opposite properties, hydrophilic and hydrophobic of the particles. So again, both these words are made up of two smaller words. Hydro मतलब क्या? पानी. Phobic ये word कहाँ से आया? Phobia. What is the meaning of the word phobia? Phobia means डर लगना. Okay. So hydro means water, phobic means डर लगना. So hydro water से डर लगना, तो पार्टिकल्स को डर लगने वाला है क्या वाटर से? नहीं, डर नहीं लगने वाला है, बट दे आर नॉट गोइंग टू लाइक वाटर अराउंड देम. वो लोग पानी से हमेशा दूर रहने की कोशिश करेंगे. सो हाइड्रोफोबिक यानी पानी से डर लग रहा है, पानी से दूर रहेंगे. एंड उसका ऑपोजिट क्या? हाइड्रोफिलिक. फिलिक यानी अच्छा लगता है. ओके, सो जिस पार्टिकल को पानी अच्छा लगता है वो पानी के आजू बाजू रहेगा. सो दैट इज हाइड्रोफिलिक. तो फ्रॉथ फ्लोटेशन में दो ऑपोजिट प्रॉपर्टीज यूज होते हैं पार्टिकल्स के. हाइड्रोफोबिक, पानी पसंद होना, पानी के आजू बाजू रहना. एंड हाइड्रोफिलिक, सॉरी, I said the other way around. हाइड्रोफोबिक यानी पानी पसंद नहीं होना, तो पानी के आजू बाजू नहीं रहना. एंड हाइड्रोफिलिक, पानी पसंद होना और पानी के आजू बाजू रहना. ओके, here the particles of metal sulfides, due to their hydrophobic property, get wetted mainly with oil, while due to hydrophilic property the gangue particles get wetted with water. Okay, so ये मेथड जनरली ऐसे ओर्स के लिए यूज करते हैं जिसमें मेटल सल्फाइड्स होंगे. ओके, सो अगर मेटल सल्फाइड्स होंगे तो हम फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज करते हैं. सो मेटल सल्फाइड्स जो है जनरली हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो वो लोग पानी से गीले नहीं होंगे. वेटेड का मतलब क्या? गीला होना. सो पानी से गीले नहीं होंगे, वो लोग ऑयल से गीले होते हैं. सो फ्रॉथ फ्लोटेशन में वी यूज बोथ वाटर एंड ऑयल. ओके, दोनों यूज करने वाले. सो मेटल सल्फाइड होने वाला है वो हाइड्रोफोबिक है, पानी पसंद नहीं है, तो वो जनरली ऑयल से, तेल से गीला हो जाएगा, उसके आजू बाजू पूरा तेल लग जाएगा. वेरस गैंग है तुम्हारा इम्प्यूरिटी, तो इम्प्यूरिटी के जो कुछ भी पार्टिकल्स है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, उनको पानी काफी पसंद है, तो पानी से गीले हो जाएंगे. ओके, बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज सर्टेन ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. तो ये प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग उसका जो ओर है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने वाले हैं. ओके, सो लेट अस लुक एट द डायग्राम नाउ. So firstly, what you're going to do is you're going to put the powder of the ore here in this container. इस कंटेनर में तुम उसका पाउडर डाल दो अपने ओर का. नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू लुक एट इज, यहाँ पे इस कंटेनर में सिर्फ पानी नहीं है, पानी के साथ पाइन ऑयल भी है. ओके, सो बेसिकली तुम कौन सा भी ऑयल यूज कर सकते हो, जनरली वेजिटेबल ऑयल यूज करते हो. ओके, सो पानी के साथ वेजिटेबल ऑयल, दैट कुड बी पाइन ऑयल or it could be eucalyptus oil. I think they've given in your textbook. Okay, you all can just read these things from your textbook and it will become clear. So पानी के साथ तुम लोग वेजिटेबल ऑयल भी यूज करने वाले हो. So यहाँ पे इस कंटेनर में क्या क्या है? अब तक तीन चीजें. पहला तो है ओर का पाउडर है, दूसरा पानी है, तीसरा वेजिटेबल ऑयल है. ये तीन चीज है इस कंटेनर में. सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू लुक एट इज, यहाँ पे देखो एक पाइप जा रहा है, राइट? यहाँ से एक पाइप जा रहा है, इस पाइप में क्या है? एयर सप्लाई. So air is going to be supplied from here and यहाँ से एयर को रिलीज किया जाने वाला है. इस पाइप में से एयर को रिलीज करेंगे, और उस पाइप में से एयर को रिलीज करेंगे तो क्या बनने वाला है? बबल्स बनने वाले हैं. तो इसके अंदर काफी सारे बबल्स बनने वाले हैं. तो अब तक चार चीजें ऐड हो चुकी है इस कंटेनर में. फर्स्ट थिंग इज ओर का पाउडर, सेकेंड थिंग इज वाटर, थर्ड थिंग इज वेजिटेबल ऑयल. अभी फोर्थ चीज ऐड की है एयर बबल्स. कहां से? इस पाइप में से, एयर सप्लाई वाले पाइप में से इसमें एयर बबल्स ऐड किए. नेक्स्ट थिंग दैट यू वांट टू you should look at is agitator. अभी agitate का मीनिंग क्या है? What is the meaning of the word agitate in normal English? Agitate मतलब गुस्सा दिलाना या फिर irritation. गुस्सा, irritation इसको बोलते हैं agitation. ओके, बट यहाँ पे किसी को गुस्सा नहीं आ रहा है, यहाँ पे सब नॉन लिविंग है. तो एजिटेटर का काम क्या है? ये रोटेट होने वाला. ओके, इफ यू सी यहाँ पे रोटेशन वाला साइन दिया है, बराबर? तो एजिटेटर इज गोइंग टू रोटेट इन दिस कंटेनर. ओके, और क्या एजिटेट कर रहा है? यहाँ पे जो कुछ भी मिक्सचर है उसको एजिटेट कर रहा है. एजिटेट कर रहा है नहीं, ये लोग बहुत फास्ट घूमना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे में टकराने लगेंगे, एक दूसरे में
कोलाइड करने लगेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ एजिटेशन ओवर हियर। तो एजिटेटर का क्या काम है, यहाँ पे जो कुछ भी मिक्सचर है उसको एजिटेट करना, उसको घुमाना, उसको कोलाइड करवाना। ओके, सो अब तक क्या क्या हुआ है, वी हैव अ कंटेनर, कंटेनर में हमने ओल का पाउडर लिया है, ओल के पाउडर के साथ वी हैव टेकन वाटर एंड वेजिटेबल ऑयल, उसमें हमने एयर सप्लाई से बबल्स बना दिए, और बबल्स बनाने के बाद एजिटेटर से उसको हम घुमा रहे उस कंटेनर में। ओके, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ओवर हियर। यहाँ पे इसके अंदर एक हाइड्रोफोबिक टाइप का पार्टिकल है और एक हाइड्रोफिलिक टाइप का पार्टिकल है। जो हाइड्रोफोबिक टाइप का पार्टिकल है उसके आजू बाजू पानी हो गया, हाइड्रोफोबिक यानी पानी अच्छा नहीं लगता, तो उसके आजू बाजू पानी होने वाला है क्या, नहीं होने वाला, उसके आजू बाजू ऑयल होने वाला है। ओके, तो हाइड्रोफोबिक जो जनरली सल्फाइड के कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होंगे, उसके आजू बाजू पानी नहीं होगा, उसके आजू बाजू ऑयल होगा। तो जो ऑयल वाले पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, बिकॉज ऑयल ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर, राइट, ऑयल है, बबल्स है, तो ऊपर चला जाएगा। द अदर टाइप ऑफ पार्टिकल इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी पसंद है। पानी किसको पसंद है, गैंग को। सो गैंग के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको पानी पसंद है, इम्प्योरिटी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको पानी पसंद है। तो पानी पसंद है तो उनके आजू बाजू क्या होगा, पानी होगा। फिर पानी ऊपर रहेगा कि ऑयल ऊपर रहेगा, ऑयल ऊपर रहेगा तो पानी नीचे आ जाएगा। तो पानी के साथ जो कुछ भी गैंग पार्टिकल्स होंगे वो नीचे रह जाएंगे। तो यहाँ पे गैंग के पार्टिकल्स नीचे निकल रहे हैं, देखो यहाँ पे नीचे से गैंग के पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वेरएस सल्फाइड वाला जो पार्ट है जो हाइड्रोफोबिक था उसके आजू बाजू पानी नहीं है, उसके आजू बाजू ऑयल है, ऑयल के साथ बबल्स है, वो सब ऊपर फ्लोट हो जाएंगे, तो ऊपर फ्रॉथ जैसा दिखेगा। ओके, और ये जो बबल्स है इसको तुम बाहर निकाल के तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज अगेन आई एम गोइंग टू शो यू ऑल हाउ डज दिस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर लुक लाइक। ओके, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। Okay, my bad. But let's look at the um, concentrated sulfide ore first, and then we'll come to the examples. Okay. So you can see so many bubbles forming, right? That is the sulfide ore. उस sulfide ore को वो लोग separate कर रहे हैं. Okay. So that is how the froth of sulfide ore looks like. Now let us look at the examples. So these are the examples. Particles of certain sulfide ore float when the foam on water with the foam on water as they preferentially get wetted by the oil. कुछ सल्फाइड के जो ओर्स होते हैं वो लोग सिर्फ ऑयल, उसके आजू बाजू सिर्फ ऑयल होता है क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि उसके बाजू सिर्फ ऑयल होता है, उसका जो फ्रॉथ होता है, उसका जो फोम होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, और उसको हम लोग सेपरेट करके उस ओर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जांपल्स, this method is used for concentration of zinc blend which is ZnS and copper pyrite CuFeS। तो दोनों में देखो सल्फर है, यहाँ पे S है, यहाँ पे भी S है, तो जिसमें भी सल्फर होगा, जिसमें सल्फाइड होगा, वो ऑयल के साथ वेट होने के बाद फोम फॉर्म करके और उसको सेपरेट कर सकते हो। ओके, सो आई टोल्ड यू राइट कि कौन सा मेथड यूज करेंगे किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। अगर मैग्नेटिक हो तो मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कर सकते हो, अगर सल्फाइड होगा तो तुम फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज कर सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सो लेट अस मूव अहेड नाउ टू द लास्ट मेथड व्हिच इज लीचिंग। The first step in extraction of metals, aluminium, gold, and silver from their ores is the method of leaching. Okay, so again these are examples. कौन से metals के लिए use किया जाता है leaching? Aluminium, gold, and silver can be asked in objective type of question. Okay, in this method, the ore is soaked in a certain solution for a long time. Soaked मतलब क्या? Soaked is a little different from making it wet. Okay, गीला करना यानी सिर्फ थोड़ा सा पानी छिड़क देना, मतलब सोक करना यानी पानी में रखना बहुत टाइम के लिए। ओके, बट यहाँ पे पानी में नहीं रख रहे हम लोग, कोई ना कोई सोल्यूशन में रख रहे एक लंबे समय के लिए। तो जैसे तुम लोग ओर के पार्टिकल्स जमा कर लोगे माइन में से, उसको एक सर्टेन सोल्यूशन में काफी टाइम के लिए सोक करके रखोगे। ओके, द ओर डिसॉल्व्स इन दैट सोल्यूशन ड्यू टू अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। जैसे तुम उस ओर को उस सोल्यूशन में डाल के रखोगे, जो ओर है वो डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। The gang, however, does not react and therefore does not dissolve in that solution, so it can be separated. So जो ore है वो डिसॉल्व हो जाएगा, बट ore में जो गैंग है, इम्प्योरिटी है, वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। So जो कुछ भी डिसॉल्व हो गया है उसको तुम सेपरेट कर दो, बट जो डिसॉल्व नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुआ, उसको तुम वापस सेपरेट कर दो। तो जो सोल्यूशन के साथ मिक्स हो गया वो तुम्हारा मेटल है, और जो
सोल्यूशन के साथ मिक्स नहीं हुआ, वो तुम्हारा गैंग है, वो तुम्हारा इम्प्यूरिटी है, तो तुमने ओर को और तुम्हारे गैंग को सेपरेट कर लिया। वेरी सिंपल राइट। बस ओर को ले लो, ओर को एक सोल्यूशन में सोक कर लो, सोल्यूशन में एक रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन सिर्फ मेटल्स के साथ होने वाला है, ओर्स के साथ होने वाला है, इम्प्यूरिटी और गैंग के साथ नहीं होने वाला है। तो जो कुछ भी रिएक्शन हो गया वो मेल्ट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, उसको तुम सेपरेट कर दो। जो डिजोल्व नहीं हुआ है उसको सेपरेट कर दो, जो डिजोल्व हो गया वो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, जो डिजोल्व नहीं हुआ वो तुम्हारा वेस्ट मटेरियल है, गैंग है। ओके, अगेन एग्जांपल्स दे हैव गिवन। फॉर एग्जांपल concentration of bauxite which is aluminium ore, okay, और aluminium की ore को हम bauxite बोलते हैं। we're going to look at aluminium extraction in detail in this chapter. so aluminium ore का जो extraction है, सॉरी जो ore है उसको bauxite बोलते हैं। सो उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे करते हैं? इट इज डन बाय लीचिंग मेथड। एल्यूमिनियम का जो ओर का कॉन्सेंट्रेशन है, फर्स्ट स्टेप है वो लीचिंग मेथड से होता है। हियर बॉक्साइट इज सोक्ड इन aqueous NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और aqueous Na2CO3 which is सोडियम कार्बोनेट। ओके, सो या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट में उसको सोक करके रखते हैं, which dissolves the main ingredient alumina in it. So alumina जो होता है बॉक्साइट में, एल्यूमिनियम की ओर में, उसको डिसॉल्व कर देता है। जो डिसॉल्व नहीं हुआ वो तुम्हारा गैंग है, उसको सेपरेट कर दो। सो दैट्स योर लीचिंग प्रोसेस। ओके, so that is it for the new concepts to be learned in this particular session. Let us do one end of chapter question. Okay, this is given on page number 109. It's a give reason. Pine oil is used in froth flotation. Okay, pine oil is nothing but a vegetable oil. Okay, so vegetable oil को froth flotation में क्यों use करते हैं? I've explained the entire process of froth flotation to you all. Pause the video here and try to write the answer by yourself. I'll wait for 5 seconds for you all to do that. Okay. Okay, 5 seconds are up. I hope you pause the video and are ready with the answer. Let us discuss the answer now. So, first point, pine oil, which is a vegetable oil, it is hydrophobic. Okay, उसको पानी पसंद नहीं है। Generally, all oil, कोई भी oil होगा वो hydrophobic होता है, क्योंकि oil और पानी mix नहीं होता, right? The particles of the metal sulfide ores which are hydrophobic get wetted by pine oil. तो metal sulfide जो होता है वो भी हाइड्रोफोबिक होता है। सो हाइड्रोफोबिक है तो पानी के साथ गीला नहीं होगा, वो ऑयल के साथ गीला हो जाएगा। ओके, दे फ्लोट विद द फोम ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। अभी ऑयल के साथ गीला हो गया तो उसका फोम बन जाएगा, बबल्स है बहुत सारे उस चेम्बर में, उस कंटेनर में, तो वो ऊपर आ जाएगा। ऑयल का जो बबल्स बन रहा है मेटल सल्फाइड के साथ, वो ऊपर आ जाएगा, फ्लोट होने शुरू हो जाएगा पानी के सरफेस पे। Thus, by using this property, some ores which contain hydrophobic particles in them can be concentrated by froth flotation process. Okay, तो ये मेथड को यूज करके जो कोई भी हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स है किसी भी ओर में, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ओके, यूजिंग फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, हेंस पाइन ऑयल इज यूज्ड इन फ्रॉथ फ्लोटेशन। वेरी सिंपल आंसर, राइट? So that is it for this answer, and that is it for this learning session as well. Just check whether you have accomplished today's learning objective or not. Can you explain me the methods to obtain concentrated ores using diagrams? Diagrams को use करके तुम अच्छे से explain कर सकते हो क्या जो 4 methods हमने देखे हैं? Okay, if yes, then you have achieved today's learning objective. One more thing I want to share is I haven't put many sentences while explaining all the methods, right? So I am trusting you all and I am believing in you all that you all will open the textbook and read that part by yourself. Okay, so खुद से तुम्हें टेक्स्ट खोलना पड़ेगा और वो पार्ट टेक्स्ट बुक से रीड करना पड़ेगा। सिर्फ डायग्राम को देख के उसका एक्सप्लेनेशन सुन के तुम्हें एक्सप्लेन करने नहीं आने वाला। यू विल हैव टू ओपन द टेक्स्ट बुक एंड रीड द टेक्स्ट बुक 1 or 2 times to understand it fully. ओके, और जैसे बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया, that are only written in your textbook. For that purpose, reading your textbook is very, very important. Okay, so do not forget to read your textbooks once these explanations are over. So that is it for this learning session. I hope you understood everything, and we'll see each other in the next one. Till then, bye and peace.